Good day. My name is Norbert Almeida, and I'm here today at the Mother's Block PK to talk about security in the festive season. The festive season around the world is known for its peak levels of crime. People take advantage of your laxity in following rules, being safe, your kind of distractedness when you're out there shopping, driving on the streets, catching public transport, etc. So quite often we forget some of the very basics in keeping ourselves safe. पाकिस्तान इज़ नो डिफरेंट. यहाँ पे भी अक्सर जो है क्रिमिनल्स काफ़ी हद तक एक्टिव रहते हैं इस पीरियड में. ये वो मौके हैं उनके लिए कि वो सबसे ज़्यादा अपनी कमाई करें. आप जो हैं शॉपिंग जा रहे हैं, आपने गौर नहीं किया, आपके पीछे कोई आ रहा है, गली में चले गए, कार पार्क किया है दूर कहीं जहाँ पे आप लोग ऑफिस से उतरे हैं, शॉपिंग के टाइम पे घर जा रहे हैं, तो आपके पीछे कोई रोड पे आके आपने गौर नहीं किया और वो अक्सर आपसे वो चीज़ें आपकी जो आपने खरीदी हैं वो ले ली हैं. या आप ATMs इस्तेमाल करते हैं. ATMs इस्तेमाल करते हुए आपने गौर नहीं किया, आपको पैसों की शदीद ज़रूरत है, जाके शॉपिंग करना है, पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है कि जल्दी करो, आपने निकलना होता है. और अक्सर इसी चीज़ में आप ध्यान नहीं देते कि आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है, वो आपसे ये चीज़ जो आप पैसे निकाल रहे हैं ATM से या आपकी जो शॉपिंग आपके हाथ में उस वक्त वो छीनने में लगे होते हैं. This is why it's important to pay attention. This is the time when there's a big rush on the streets. The malls are packed. People are traveling. The airports are packed. Every railway stations, you name it, people are on the move constantly. And while you're on the move, you're generally distracted by things. Make sure all your baggage is together. Hey, where's this person? He's run off to the canteen. Go catch him. Somebody else has gone to a different area, and they're trying to bring you things and get those things sorted out. So it is important for you to realize that there are people out there who want to take advantage of the situation. They want to capture the things that you're doing. You've hard-earned money. They want to take it away from you, deprive you of those things. And this is really where we have to kind of pay attention. So today what I'll talk to you about is how to stay safe, how to realize what you need to do, and how to work on things. So for instance, right from the moment you leave your home, whether it's the daytime, the nighttime, whatever, someone needs to know where you're going. I'm going to the shopping mall. I will take X amount of time. This gives anyone else who needs to find you if there is an emergency, whether it's with you or somebody else or something else is happening in the city. And things could happen, many things could happen. We automatically assume terrorism or criminal activity, like natural disasters. बारिश हो सकती है जिससे रोड सारे फ्लड हो चुके हैं, आप घर नहीं पहुंच पा रहे. It's always important to tell someone where you are or where you're going to be. Once you're there, at least inform them that you've reached, and now you continue with your activity. चाहे वो पूरे दिन ऑफिस में बैठना हो या अगले 4-5 घंटे शॉपिंग मॉल्स में गुजार रहे हो, लेकिन एक जेनेरिक एरिया का ज़रूर बताएं. और ख़ास तौर पे अगर आप कुछ रूटीन से हट के करें. अक्सर औक़ात यही होता है कि हम ऑफिस चले जाते हैं और ऑफिस से घर जाते हुए अचानक जो है लेफ़्ट टर्न ले लिया, राइट टर्न ले लिया और कहीं हम किसी दोस्त के यहाँ बैठ गए या शॉपिंग मॉल चले गए. लेकिन घर वाले जो हैं वो आपको एक्सपेक्ट करें क्योंकि नॉर्मली जो है आप शाम के 7 बजे 6 बजे जो है घर पहुंचते हैं. लेकिन आज क्या हुआ कि आप 10 बजे तक घर नहीं पहुंचे, वो पीछे परेशान क्योंकि आपने उनको फ़ोन नहीं किया. इसी तरह चीज़ें फैलती हैं और खामखाई में आपने उनको परेशान कर दिया. आप उनको एक मैसेज कर देते कि यार मैं अभी थोड़ी देर के लिए इस साइड पर जा रहा हूँ, तो वो आपको इस चीज़ पे वो कह देते हैं कि ठीक है, और वो परेशान नहीं होता. दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट पीपल टेक एडवांटेज ऑफ. सिमिलरली नो व्हाट यू कैरिंग. आप घर से निकलते हैं तो आपके बैग में क्या है? आप एक वॉलेट कैरी कर रहे हैं, एक पर्स है कैरी कर रहे हैं, उसमें क्या है आपको पता है कि आपका ID कार्ड है, उसमें लाइसेंस है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, ATM डेबिट कार्ड्स हैं, जो कुछ भी हो. क्या आपको अपने बैग के अंदर जो चीज़ें हैं उसका इल्म है? इल्म नहीं है तो एक बार रुकें, चेक करें, क्योंकि रास्ते में अगर आप जा रहे हैं और आपके बैग में से किसी ने कुछ निकाल दिया और आपको पता नहीं चलता, वो उस चीज़ को बाद में इस्तेमाल कर लेते हैं किसी भी वजह, फिर आप क्या करें उसके बाद? तो इसलिए शदीद ज़रूरत है कि आप इस चीज़ों पर गौर करें कि ATM कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, ख़ास तौर पे ड्राइविंग लाइसेंस, CNIC एट्सेट्रा जो भी कैरी कर रहे हैं उसको एक तो अगर उसका लॉस होता है तो फ़ौरन उसको रिपोर्ट करें, बैंक के हेल्पलाइंस को फ़ोन करें, उनको बोलें कि आपका कार्ड चोरी हो गया है, मिसप्लेस हो गया, जो भी है. आप कहेंगे जी मुझे अपना कार्ड नंबर याद नहीं है, तो अक्सर औक़ात बैंक्स जो हैं आपको बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन पूछते हैं
लेकिन उसमें आपका CNIC अगर पाकिस्तानी नेशनल है आपको CNIC के बारे में पूछेंगे, फॉरेन होल्डर हैं आपका पासपोर्ट नंबर मांगेंगे, आप उसको बताएं और वो आपको फिर 2-3 सवाल सिक्योरिटी सवाल कर पूछ के आपका कार्ड ब्लॉक कर देंगे, टेम्परी ब्लॉक कर सकते हैं, परमानेंट ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद जो भी शॉपिंग अगर कोई भी ट्रांजैक्शन उस कार्ड पे हो वो फिर बैंक की लाइबिलिटी बन जाती है, क्योंकि उस पॉइंट तक जब तक आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया वो सारी लाइबिलिटी आपकी है। अब डिस्प्यूट में जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते हैं, लीगल इश्यूज़ हैं, वो अलग सी बात है, लेकिन उस वक्त आपको ये परेशानी ज़रूर हो जाती है। अब आप सोचें कि आखिरी चंद दिन चल रहे हैं आपके, कोई भी फेस्टिविटी हो, ईद हो, क्रिसमस हो, कुछ भी हो, उसके आखिरी चंद दिन में आपको ये नुकसान हो जाए, आप बैंक चले जाएँ, गवर्नमेंट नेशनल हॉलीडेज़ हैं, 2-3 लॉन्ग वीकेंड्स आ जाते हैं, आपको फिर डिले हो जाता है, आप फंस जाते हैं, आपको सिर्फ बैंक जाना होगा, फिर वहाँ से क्रेडिट कार्ड ब्लॉक है, कैश निकालना है, किस तरह करेंगे, तो ये चीज़ें आपने गौर करनी है। इसके अलावा शॉपिंग इज़ द बिगेस्ट थिंग विद दैट। आप भूल जाते हैं कि आपको जो सिर्फ कैश नहीं है, शॉपिंग में जो आपने कपड़े लिए हैं, अपने घर वालों के लिए लिए हैं, किसी के लिए भी लिए, कोई भी चीज़ अपने घर के लिए लिया हो, किसी और के लिए लिया हो, वो आपसे छिन जाए, आप क्या करेंगे? हम क्या करते हैं, हम रेस्टोरेंट जाते हैं, अक्सर औकात देखते हैं कि लेडीज़ जो अपना हैंड बैग ज़मीन पे छोड़ देते हैं, गौर नहीं करते हैं, वो रख देते हैं, इधर उधर बातें कर रहे हैं, कोई आके साइड में से छीन लेते हैं, चला जाता है, या वो कुर्सी के पीछे वो लटका देते हैं, कहते हैं हाँ यहाँ से कौन लेके जाएगा, लेकिन रश में कोई पीछे से आपको धक्का दे दे गलती से, आप उसको देखने में लग जाते हैं और पीछे से आपका बैग चला जाता है। लेडीज़ खास तौर पे ये याद रखें कि ये सिर्फ मर्दाजात चोर नहीं है, ये अक्सर औकात सिर्फ जो आपको स्ट्रीट पे नज़र आते हैं बिल्कुल ज़रूर होंगे, लेकिन आपके जो मीना बाज़ार्स हैं, आपके जो छोटे मॉल्स हैं, आपके बड़े मॉल्स में भी अक्सर औकात यहाँ पे और इस तरह के त्यौहार के तौर पे टाइम पे हमेशा यही होता है कि औरतें डिस्गाइज में घूमती हैं। आजकल वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं रिसेंटली फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो गैंग ऑफ लेडीज़ जो हैं वो घूम रहे हैं, उन्होंने एक साइड से आपको धक्का दिया, दूसरी साइड से आप बहस में लग जाएं, तीसरा आपका बैग छीन के चला गया, आपको अंदाजा नहीं है। But that's nature, that's across the world, that is not unique to Pakistan. It is important for you to understand there are people lurking out there. फिर आप क्या करते हैं, आप जाते हैं एक बड़े बाज़ार में या मॉल में या रोडों पे आप जा रहे हैं, आपके साथ 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, किसी और के फैमिली, it's a season to celebrate. You're out there, shopping is not just an experience to just shop, it's for family to entertainment. पाकिस्तान में entertainment हम कहते हैं कि कमी है, लेकिन malls are big entertainment, shopping plazas are big entertainment. So what you do is you take your families out, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, किसी ने वॉशरूम जाना है, अब क्या करें, 3 बच्चों को एक साथ वॉशरूम लेके जाएं, दूसरे को कहाँ छोड़ें, ये अक्सर औकात हम यही चीज़ें भूल जाते हैं। And this is where it's important for you to realize that there are things that are happening out there. आप गाड़ी पार्क करने जाते हैं, आप कहाँ गाड़ी पार्क कर रहे हैं, आप जिस लोकेशन पे जाना है उसकी करीब तरीन जगह में पार्क करें, लेकिन क्या वो करीब तरीन जगह जब आप वापस आएंगे, आप दिन के टाइम पे गए अंदर और रात में वापस निकल, क्या वो रात में वो सेफ़ है, वहाँ पे कोई लाइटिंग है, या आप जा रहे हैं कोने खांचे में और वहाँ पे आपके लिए कोई इंतज़ार कर रहा है कि आपसे जो आपकी चीज़ें हैं वो आपसे ले लें। So understand the risk when you're parking. So even if you're parking in the daytime, realize that when you come back, whatever time, is it safe? Likewise, you have to do other things as well. Pay attention about who's around you. And quite often people forget that the law enforcement is there and it's present. And especially around festivities, they're always present. They have special stalls set up. Go and report the crime. If it happened to you, report it. If you see somebody else in trouble, report it. It is important because you fail to report, somebody else fails to report, and that crime continues. The authorities can never know that something has happened until someone actually goes and reports it. Unless it's something major that every news channel is covering. But the point is with small crime, petty crime, people get impacted and they fail to report it. It is important for you to report it. That's how they know that they can then allocate a certain number of resources to that location to help you, keep you safe. So you may actually not report the crime that happened to you. Tomorrow somebody else from your own family or friends goes there and they also get mugged or something happens to them. Why? Because you failed to report it the day before. You saw something, you didn't report it. And the authorities were oblivious to it. They had no idea that things were happening. As a result, the next day you've enabled someone else's crime. And this is important for you to understand. Likewise in emergencies, where do you go? Do you know where to go? Which hospital is the right hospital to be treated at? What hospitals treat what type of victims?
What are the emergency numbers to call? Whether at home, whether outside, do you know the area you're going to and how to do things? And it is important for you to understand that this is how people work. They take advantage of the lack of knowledge that the general public has. This is the time we are important for us to pay attention. And like always, stay safe. This is easy to do tips. You can read more on the website. We have these tips up. You have questions, please send them in.